بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس جو قاعدہ ہم نے اپنے سلیبس میں یعنی کہ منتخب کیا ہے وہ بہت اچھا اور آسان سا قاعدہ ہے، تاکہ آپ لوگ کو جو خاص طور پر جو نئے سیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور ان کو بہت اچھا اور جلد سمجھ آ جائے۔ تو ہمارے پاس یہ جو عربی زبان کا یہ جو قاعدہ ہے، اس میں سبق فہرست میں جو ہمارے 9 سبق تک ہے نا، 9 سبق تک ہمارا انشاءاللہ صرف چلے گا۔ اور صرف میں کیا ہوتا ہے، اس میں ماضی معروف یعنی ماضی مجہول، مضارع معروف، جس طرح کہ ہم لوگ انگلش میں زمانے ٹینسز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، پریزنٹ پاسٹ، تو سیم یہ ادھر ہمیں بتائی جاتی ہیں، زمانے بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان میں سیغوں کا ہیر پھیر، تبدیلی ان کی، ایک سیغہ پہلے کیسا تھا ایک لفظ، وہ پھر بعد میں کیسے بنا، جس طرح ہم لوگ انگلش میں گو وینٹ گون، تو اس طرح سیم یہاں پہ بھی لفظوں کی چینجنگ ہوتی ہے۔ تو صرف میں اس چیز کو یعنی کہ زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور نحو، پھر اس میں ایک نحو ہوتا ہے، عربک میں بھی ہوتا ہے ہاذا اور ذالکا۔ تو اور اس کے علاوہ کلمات استفہام، جیسے کہ انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں نا ہاؤ، وین، واٹ، تو اس طرح یہ عربک میں استفہام ہوتے ہیں۔ اس طرح ظرف مکان، ظرف زمانی، سارا نحو میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہ تو اس قاعدے میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتائی، صرف اور نحو۔ اب کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس علم کی مبادیات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مبادیات کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام، تعریف، موضوع، غرض و غایت، اس کا فائدہ، اس کا شرعی حکم کیا ہے سیکھنے کا، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ علم کی ایک مبادیات ہوتی ہیں۔ بعض اہل علم نے 10 بتائی ہیں مبادیات، اور بعض نے 8 بتائی ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو تھوڑا سا خاص بتاؤں گی تاکہ جو آپ کو یاد بھی رہ سکے۔ سب سے پہلے ہم تعریفات کی طرف چلیں گے۔ آپ امید ہے نوٹس ضرور لیجیے گا، اور کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر یہ یاد بھی آپ نے کرنا ہوگا انشاءاللہ، یہ ٹیسٹ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو نحو اور صرف جب ہم نے سیکھنا ہے نا، تو ان کی تعریفات بھی ہمیں آنی چاہیے، تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں نے اس میں کیا سیکھنا ہے۔ ظاہر ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو آپ کہیں گے میں نحو پڑھ رہی ہوں، تو آپ وہ پوچھیں گے کہ بھئی نحو میں آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں ضمیر مجرور، متصل اور ضمیر منفصل وغیرہ کلمات استفہام پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، یہ تو اس کے اندر کی ڈیٹیل اس کی چیزیں ہیں، لیکن آپ ایک بیسک ہے، اس کی ایک تعریف بھی تو ہوتی ہے نا ہر چیز کی۔ تعریف سے آپ واضح کریں گے کہ میں اس میں یہ وہ علم ہے، یعنی کہ اس میں اسم فعل و حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی آخری حرف کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ معرب مبنی ہو۔ تو یہ چیزیں جب ہمیں کلیئر ہوں گی تو پھر ہم اس کو اچھے سے بھی دوسرے کو بھی بتا سکیں گے، اور تعریف بھی اس طرح ہم اس کی بیان کر سکیں گے دوسرے کے سامنے۔ تو پہلے ہم تعریفات کی طرف چلتے ہیں، تعریفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مبادیات بھی اس کو کہا جاتا ہے کسی بھی علم کے۔ سب سے پہلے ہم نحو کو دیکھتے ہیں۔ نحو کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور اس کے جو تعریف ہے نحو کی وہ ہو جائے گی پھر نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ کچھ لفظ مشکل بھی آئیں گے، لیکن اگر وہ لفظ ان کے بارے میں ٹاپک آگے ڈیٹیل میں آگے رہیں گے، اگر وہ لفظوں کی میں آپ کو پہلے ایکسپلینیشن کرنے لگ جاؤں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو جس طرح میں لکھوا رہی ہوں آپ اس کو ابھی اسی طرح لکھتے جائیے گا، وہ انشاءاللہ آپ کے آگے کور ہوتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نحو کی تعریف تھی۔ نحو کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور تعریف ہے اس کے وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے یعنی کہ معلوم ہو۔ آپ کو میں نے پہلے بھی، اگر کسی نے میرا پہلا یہ ایک منٹ ٹیچر، یہ آپ لکھوا رہی ہیں، ڈکٹیٹ کروا رہی ہیں یا پھر یہ موجود ہے قاعدے میں؟
नहीं, नहीं, ये कायदे में मौजूद नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ कि नहव की और सर्फ़ की तारीफ़ात, ये इसमें नहीं है मौजूद। इसमें देखें अरबी ज़ुबान का जो हमारा कायदा है, अगर आप लोगों ने लिया है तो ये ज़रूरी बातों से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोगों को तारीफ़ात और किसी इल्म को जब हम सीखते हैं तो उसकी मुबादियत हमें उन चीज़ों के बारे में तो पता हो ना कि भई ये हम चीज़ें सीख रहे हैं, नहव में क्या है, सर्फ़ में क्या है, इनकी तारीफ़ात क्या हैं, ये हम क्यों सीख रहे हैं, इनकी गर्ज़ व गायत क्या है, इसका हुक्म क्या है। तो ये चीज़ें आपको मालूम जी, होनी चाहिए किसी भी इल्म को सीखने के लिए। थोड़ा स्पीड स्लो से बोलें फिर, क्योंकि वो लिखने में इतनी स्पीडली लिखा जा रहा। ठीक है, स्लो बोलूँ? जी, आई मीन अपना ये जो तारीफ़ लिखवाई है ना, आप बहुत तेज़ी से लिखवाई है, लिख नहीं पा रहे हैं। चलें ठीक है। दरअसल हमें तेज़ लिखने की आदत होती है ना, हम लोग ज़रा तेज़-तेज़ लिख रहे होते हैं, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में शयूख जो हैं वो बहुत तेज़-तेज़ बोल रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने वही मुझे भी मेरे माइंड में भी वही था। चलिए बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्लो-स्लो बोलूँ, लेकिन देखिए आप कोशिश करें कि इसको तेज़-तेज़ लिखा करें क्योंकि टाइम भी हमारा कम होता है। तो अगर मैं आपको इतनी देर में इतनी करवाऊँ तो फिर हम ज़्यादा फिर इसमें क्लास में ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाएँगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी-जल्दी स्पीड थोड़ी-सी ना तेज़ कर लें आप अपनी। नहव का जो लुग़वी माना है वो है कसरत करना और इसकी तारीफ़ जो होगी वो ये होगी, नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम, फ़ेल और हर्फ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीक़ा और उनके आखिरी हर्फ की हालत मुअर्रब व मबनी होने के एतबार से मालूम हो। और एक बात और बता दूँ कि अगर आपका कुछ मिस भी हो जाता है तो आपसे रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, तो आप अपनी उस रिकॉर्डिंग को सुन के भी आपका जो मिस हो जाता है आप वहाँ से भी आप लिख सकती हैं। ठीक है? इसके बाद है मौज़ू। नहव की तारीफ़ हमने पढ़ ली, अब इसके बाद है मौज़ू। इसका मौज़ू क्या है? इल्म नहव का मौज़ू है कलमा और कलाम। कलिमा और कलाम इसका मौज़ू है। अब इसकी गर्ज़ ग़ायत की तरफ आते ये इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि इंसान अरबी ज़ुबान पढ़ने, लिखने और बोलने में हर किस्म की गलती से महफूज़ रहे, ख़ुसूसन कुरान और हदीस के सही फ़हम का मलका पैदा हो सके। अब इसका है इसके वाज़े कौन है? यानी कि मूजद, इसके बानी, फाउंडर जिसे हम कहते हैं कि इसको इजाद किसने किया, बनाने वाले कौन हैं इसके? तो इसके राजिह कौल के मुताबिक इस इल्म के बानी या मूजिद हैं जलीलुल क़द्र ताबई अबू अस्वद दुअली रहमहुमुल्लाह हैं। दोबारा नाम बोल देती हूँ मैं। इसके वाज़े यानी कि इसके फाउंडर जो हैं वो राजिह कौल के मुताबिक इस इल्म के मूजिद जलीलुल क़द्र ताबई अबुल अस्वद दुअली रहमहुमुल्लाह हैं। और इस इल्म का शरई हुक्म क्या है सीखने का हमारा? कि इसका जो सीखना है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये नहव की मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, उसकी तारीफ़ बता दी है, गर्ज़ क़ायत बता दी है और मौज़ू बता दिया है इसका कि हम लोग किस-किस चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे और मैंने ये भी बता दिया कि इसके बानी कौन है और हुक्म। अब हम चलते हैं इल्म सर्फ़ की तरफ। इल्म सर्फ़ लुग़वी मायने इस सर्फ़ का लुग़वी मायने है घेरना, तब्दील करना। और इल्म सर्फ़ की इस्तिलाही तारीफ़ फिर यूँ होगी, सर्फ़ वो इल्म है, जिसमें सीग़े बनाने और इनमें तग़य्युर यानी कि चेंजिंग और इनमें तग़य्युर करने के कवाइद व ज़वाबित बयान किए जाएँ। मौज़ू इसका मौज़ू इल्म सर्फ़ का मौज़ू इसम मुअर्रब और फ़ेल मुतसर्रिफ़ है। मौज़ू इल्म सर्फ़ का मौज़ू इसमें मुअर्रब और फ़ेल मुतसर्रिफ़ है। इसका फ़ायदा क्या होगा या अरबी के मुफ़रद अल्फ़ाज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ करना और इनमें गलती करने से महफूज रहना। और इसका शरई हुक्म क्या है? इल्म सर्फ़ का वो है इस इल्म का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ आइन के बारे में फ़र्ज़ किफ़ाया के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता चले मैं बता देती हूँ। फ़र्ज़ की यानी कि 2 किस्में हो जाती हैं। आगे एक फ़र्ज़ आइन और एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन जो है वो उसको कहा जाता है कि जिसका अदा करना मुसलमानों के हर फ़र्ज़ से यानी कि मतलूब हो। अगर वो उसे ना करेगा तो गुनहगार होगा और इसके बजाय कोई दूसरा उसे अदा कर नहीं सकता। जैसे कि नमाज़ है, ज़कात है, हज है, वफ़ाए है, शराब वग़ैरह से परहेज़। तो ये नमाज़ है, नमाज़ हर किसी ने अपनी-अपनी पढ़नी होती है। आप किसी दूसरे की नमाज़ नहीं पढ़ सकती। ज़कात हर किसी ने अपनी-अपनी देनी है, आप किसी दूसरे की ज़कात नहीं दे सकती। हज हर किसी ने अपना-अपना करना है, आप किसी दूसरे का हज नहीं कर सकता, वो हज्जुल बदल हो जाता है। दूसरा उसमें होता है कि जब आपने पहले खुद अपना किया हुआ हो।
ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود کرنی ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں، جو کہ ہم سے ہی یعنی کہ شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کو، یہ فرض عین ہے، ہر بندے سے مطلوب ہے۔ اسی طرح ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطالبہ تو شارع نے تمام مسلمانوں سے کیا ہو، لیکن اگر ان میں سے چند لوگ اسے انجام دیتے ہیں تو وہ سب گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی اسے انجام نہ دے تو سب گناہگار ہوں گے، جیسے کہ نماز جنازہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسی طرح عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اسی طرح اسپتالوں کی تعمیر ہے، اور اسی طرح دوسری تمام ضروری پیشے۔ تو یہ اب یہ دیکھیں نماز جنازہ جب ہوتا ہے تو اس میں سارے ایک ہی شہر، جیسے کہ اسلام آباد میں کسی کا جنازہ ہو رہا ہے تو اسلام آباد کے سارے لوگ تو نہیں آ جاتے نا، کون ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی محلے وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو پورا شہر تو نہیں آتا، پورا شہر تو نہیں ہوتا اسلام آباد کا، جیسے سارا شہر تو نہیں ہوگا، تو یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی ادا ہوگا جنہوں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فرض عین، نماز پڑھنا وہ سب پہ یعنی کہ واجب ہے، تو یہ اس علم کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے، یہ اس کا شرعی حکم تھا۔ اب بتائیں کہ آپ لوگوں کو تعریفات، نحو اور صرف کی سمجھ آ گئی ہیں؟ نحو کی تعریفات، صرف کی تعریفات سمجھ آ گئی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باتیں جی میم کچھ آ گیا، پھر کچھ انشاءاللہ آڈیو سنیں گے تو آئے گی نا، کچھ الفاظ مس ہوئے ہیں میرے، تو وہ آواز کٹ رہی چلیں ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے نا ریکارڈنگ شیئر کر دی تو جائے گی، تو انشاءاللہ آڈیو۔ جو جی مس جی ہوا نا جزاک اللہ جی، جی جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں ہم اپنے قاعدے کی طرف، اب ہم اپنا قاعدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جس میں سب سے پہلے ضروری باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، میرے خیال سے یہ چیز تو آپ لوگ سب کو پتہ ہی ہوگی، حرکت جو ہے وہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور ہر ایک حرکت کو، اور ان تین کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، عربی میں ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی نا تو یہ اس قاعدے میں نہیں ہوگا، یہ ایکسٹرا ہوگا، یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے گا، اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو مت لکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پہ لکھ کے دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، شاید اتنا تو سب کو آئیڈیا ہوگا ہی، اتنا پڑھا تو ہوگا ہی، آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک میں، اور پڑھتے بھی ہیں روزانہ میں انشاءاللہ۔ اور جو زبر ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، جو اوپر ہوتی ہے نا لفظ کے اوپر، اس کو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جو نیچے ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ زیر کہتے ہیں، سوری زیر کو کسرہ کہتے ہیں، جو نیچے ہوتی ہے اس کو زیر، اور پھر زیر کو عربی زبان میں ہم لوگ کسرہ کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ اس کی مثال سے میں یوں بتا دیتی ہوں، رب العالمین، رب العالمین، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو عربک میں جب ہم یہ ٹرمینالوجیز کرتے ہیں تو ہم لوگ یوں نہیں کہتے کہ زبر ہے یا را کے اوپر، ہم کہتے ہیں جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ را کے اوپر فتحہ ہے، را کے اوپر فتحہ ہے۔ تو اسی طرح پھر با کے اوپر، تو ہم یوں نہیں کہیں گے با کے اوپر پیش ہے، با کے اوپر ہم کہیں گے ضمہ۔ اسی طرح عالمین، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور لام کے اوپر فتحہ، میم یا زیر، میم کے نیچے کسرہ، ہم اسے زیر نہیں کہیں گے، ہم اس کو کسرہ کہیں گے، اور یا پر سکون، نون کے اوپر فتحہ، رب العالمین، ٹھیک ہے، ہم زبر زیر پیش نہیں کہیں گے، جب ہم لوگ عربی گرامر میں پڑھیں گے تو ہم لوگ یہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہیں گے۔ یہ مطلب یہ آپ نے لکھنا ہو تو لکھ لیجیے گا، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ ان چیزوں سے مانوس ہو جائیں تھوڑا سا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زمانہ۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اردو میں بہت پڑھا ہوگا، اور اکثر ہم لوگ بچپن میں جو ہماری کتابیں ہوتی تھیں اردو میں تو وہاں پہ اکثر ایکسرسائزز میں یہ ہوتا تھا کہ زمانوں کی پہچان کیجئے، کہ احمد نے مارا، یہ کون سے زمانے کا ذکر ہے؟ تو میرے خیال سے یہ بھی آپ لوگ کے نالج میں ہوگا انشاءاللہ۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ یعنی کہ پریزنٹ جس میں ہم ہیں، مستقبل فیوچر آنے والا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں عربک میں۔ اور فعل ماضی، اب ہم فعل ماضی کی طرف آتے ہیں، وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، جیسے کہ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں۔
ज़ोराबा एक लफ्ज़ है, एक फ़ेल है और इसके मायने होते हैं मारना। तो ये इंशाल्लाह जब आप गर्दान इसके आगे याद करेंगी, इसका सबक आएगा इसका, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ़ एक मिसाल उन्हें दिए तो आप हम उसी को यानी कि समझेंगे। वो फ़ेल है जो ये बताए ये काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है। जैसे कि ज़ोराबा मारा उसे एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में। ये फ़ेल माज़ी था। अब फ़ेल मुज़ारे को देखते हैं। वो फ़ेल है जो ये बताए कि ये काम इसी वक़्त होता है या आइंदा ज़माने में होगा। जैसे कि यज़रिबु, वो एक मर्द इसी वक़्त मारता है या आइंदा ज़माने में मारेगा। आप लोगों ने सिस्टर्स नोट किया होगा कि फ़ेल माज़ी में जो इसकी शेप थी वो ज़ोराबा की वो ज़ोराबा थी, और जबकि फ़ेल मुज़ारे में है तो यज़रिबु हो गया। तो ये इस तरह ये शेप चेंज होंगे, तो इसी से हम पहचान कर सकेंगे कि ये फ़ेल मुज़ारे है, ये फ़ेल माज़ी है। तो अब ये यज़रिबु जब इसने चेंज कर ली अपनी शेप, तो ये हमें पता लग गया कि ये फ़ेल मुज़ारे की बात हो रही कि वो या तो मर्द इसी वक़्त मार रहा है, इसी वक़्त काम कर रहा है या आइंदा ज़माने में करेगा। फ़ेल मुज़ारे के आखिर में पेश आता है, जैसे कि यज़रिबु। इसके बाद आ जाता है अमर। अमर होता है किसी को काम का कोई हुक्म देना, ठीक है? उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे कि इज़रिब, तू मार। अब यहाँ भी देखें, टोटल फिर एक शेप चेंज हुई। पहले ज़राबा था माज़ी में, मुज़ारे में यज़रिबु हो गया, अमर में आके इज़रिब हो गया। तू मार। मैंने सर्फ में बताया था आपको, सर्फ में ये सीगों की चेंजिंग तब्दीली का हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये बताया जाता है कि ये किस तरह एक लफ्ज़ से दूसरी शक्ल कैसे इख्तियार करता है एक लफ्ज़, ठीक है? अब है उसके बाद है नहीं। नहीं उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए। ज़े ला तज़रिब, तू मत मार। अब यहाँ देखें आप, तज़रिब हो गया, ता का एक इज़ाफ़ा भी हो गया, और एक लाम अलिफ़ ला का भी इज़ाफ़ा हो गया। ला का मतलब होता है नहीं, और तज़रिब मतलब होता है तू मार। अब जब ला लग जाएगा तो हो जाएगा तू मत मार। ये नहीं आ जाएगा, यानी कि किसी काम से रोका जा रहा है। फ़ेल माज़ी में था ज़रबा, उसने मारा गुज़रे हुए ज़माने में। फ़ेल मुज़ारे में था यज़रिबु, वो एक मर्द उसी वक़्त मारता है या आइंदा ज़माने में मारेगा। और अमर में किसी काम का हुक्म दिया गया था, तो हम इसको ज़रबा से ये इज़रिब हो गया। इस तरह नहीं, इस फ़ेल को कह इस काम से रोका जाए तो ये ला तज़रिब हो गया कि तू मत मार। अब आते हैं हम वाहिद की तरफ। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं। मेरे ख्याल से ये तो आसान है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। मुज़क्कर नर को कहते हैं और मुअन्नस मादा को कहते हैं। ये भी आपको पता ही होगा कि उर्दू में हम लोग पढ़ा करते थे मुज़क्कर मुअन्नस, जब टीचर्स करवाती थी तो वो अम्मी, अब्बू, ताया, ताई, नाना, नानी मुज़क्कर मुअन्नस में करवाते थे ना। तो ये वो बताया जा रहा है, मुज़क्कर नर को कहते हैं, मुअन्नस मादा को कहते हैं। गायब, गायब वो है जो मौजूद ना हो, ये भी ईज़ी है। हाज़िर वो है जिससे बात की जाए, जो हमारे सामने हाज़िर है। अब मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, जो बात कर रहा होता है ना उसे मुतकल्लिम कहते हैं। अब हम इनके सीखों की तरफ आते हैं। ये चीज़ें हमारी बेसिकली हमारी अब कंप्लीट हुई। इसमें हमने पहले पेज पे हरकत पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश, और मैंने आपको इसके अरबिक में भी बताया इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ज़माना पढ़ा, और उसके बाद हमने फ़ेल माज़ी पढ़ा, फ़ेल मुज़ारे, इस तरह अमर, नहीं, वाहिद, मुज़क्कर, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम पढ़ा। अब हम आगे इनके 14 टीचर एक सीगों के सवाल था, बारे में एक जी, क्वेश्चन कर लास्ट सकती में। हूँ? हाँ, लास्ट में। मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन लेती हूँ, इंशाल्लाह। माज़ी मुज़ारे के 14 सीगे होते हैं। 6 गायब के होते हैं, 6 हाज़िर के और 2 मुतकल्लिम के। गायब के 6 सीगे ये हैं। सबसे पहले वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। ये देखें, ये 3 सीगे मुज़क्कर के हो गए। वाहिद के लिए 1, फिर तस्निया के लिए 2, और जमा के लिए फिर तीसरा सीगा आया। इसी तरह वाहिद मुअन्नस गायब के लिए फिर 1, तस्निया मुअन्नस गायब के लिए 2, और फिर जमा मुअन्नस गायब के लिए 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, और ये 6 सीगे सारे किसके थे? गायब के। इसी तरह वो कह रहे हैं कि 6 सीगे इसी तरह हाजिर के होंगे, लेकिन फ़र्क होगा कि जहाँ हम लोग वाहिद मुज़क्कर गायब लगा रहे थे, वहाँ पे हाजिर लग जाएगा, वहाँ पे हाजिर लग जाएगा। आए देखते हैं, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, और इसी तरह मुअन्नस के वाहिद मुअन्नस हाजिर,
तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर, ये 6 हाजिर के हो गए, 6 गायब के, 6 हाजिर के, टोटल ये हमारे पास 12 सीगे हो गए। अब उन्होंने हमें कहा था कि 14 सीगे होते हैं, तो ये 12 सीगे हो गए। अब 2 मुतकल्लिम के मिला के ये बस पूरे 14 हो जाएंगे। 2 मुतकल्लिम के सीगे कौन से होते हैं? वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया और जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। अच्छा, उन्होंने ऊपर गायब में बताया कि ये 6 सीगे होते हैं। उन्होंने हमें अकेले-अकेले यानी कि हर किसी का बताया कि मुज़क्कर के लिए ये इस्तेमाल होगा, वाहिद मुअन्नस के लिए ये इस्तेमाल होगा। लेकिन ये मुतकल्लिम में देखिए, उन्होंने मुतकल्लिम के सिर्फ 2 सीगे उन्होंने यहाँ पे हमें बताया। मुतकल्लिम के 2 सीगों में वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम को उन्होंने इंक्लूड कर दिया 2 को, और तस्निया में जमा और मुज़क्कर 2 यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस इन 4 को यानी कि इंक्लूड कर दिया। इनके हमें अलग-अलग सीगे नहीं यानी कि उन्होंने बताए, सिर्फ मुतकल्लिम में 2 का इन्होंने हमें बताया है, और ये इसमें सारे इसमें ये कंसीडर हो जाएंगे। मसलन अगर जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं पानी पीती हूँ, तो अशरबु, मैं पानी पीती हूँ। अब अगर आके कोई एक मर्द कहता है, कोई मुज़क्कर आके बात करता है भाई मैं पीता हूँ, तो वो भी सेम यही यूज करेगा अशरबु। अब आप उसको ये नहीं, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसने ये मुज़क्कर था, इसने भी वो इस्तेमाल किया तो मुअन्नस वाली ने भी। ये हमें बताया जा रहा है कि मुतकल्लिम के 2 सीगे और इसमें वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जमा होते हैं, दोनों ने एक सीगा यूज करना है, अशरबु अशरबु, ठीक है। इसी तरह तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम में भी यही होगा। अगर 2 ख़वातीन आके कहती हैं ज़रबना, हमने मारा, 2 औरतें आके कहती हैं, और 4 ख़वातीन भी आ जाएँ, वो भी आके कहेंगी ज़रबना, हमने मारा। इसी तरह अगर मर्द आ जाएँ 2, वो भी कहेंगे ज़रबना, हमने मारा। और इसी तरह 2 से ज़्यादा भी मर्द आ जाएँ, तो 4 आ जाएँ, 8 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, वो भी आके कहेंगे हमने मारा, तो उनके लिए भी ज़रबना यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम में ज़रबना यानी कि ना आखिर में नून अलिफ ना की ज़मीर, ये इंशाल्लाह जब हम लोग गिरदान याद करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बस आपको याद करने का और समझने की बात ये है कि मुतकल्लिम का जो एक सीगा होगा जिसमें सिर्फ एक यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस का ज़िक्र होगा, उसमें एक ही सीगा इस्तेमाल होगा, जैसे कि अशरबु, मैं पानी पीता हूँ या मैं पानी पीती हूँ। इसी तरह तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस में 2 औरतें आ जाएँ, बेशक 2 से ज़्यादा औरतें आ जाएँ, बेशक 2 ही आ जाएँ। इसी तरह मर्द भी 2 आए, 2 से ज़्यादा आ जाएँ, उनके लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होगा। अगर उन्होंने जो भी वो यानी कि उन्होंने काम फ़ेल किया उसके हिसाब से वो उस सीगे का इंतखाब करेंगे। अगर उन्होंने मारा है तो वो फिर मारने के लिए ज़रबना कहेंगी, ठीक है? ये तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस में वो इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं हम माज़ी मारूफ गायब के 6 सीगों की तरफ यानी कि गर्दान की तरफ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला है हमारे पास सर्फ का मुख्तसर बयान, माज़ी मारूफ गायब के 6 सीगे। ज़रबा, ज़रबा हमने देखे पीछे भी पढ़ के आए, ये माज़ी में उन्होंने हमसे ये मिसाल उन्होंने हमसे बताई थी माज़ी मारूफ में, और उन्होंने हमें साथ ये भी बताया था समझने के लिए कि उसे एक मर्द ने मारा गुजरे हुए ज़माने में। अब वो गुजरा हुआ ज़माना हर किसी एक में नहीं लगाएँगे, हर सीगे में उन्होंने नहीं लगाना कि उन 2 मर्दों ने मारा गुजरे हुए ज़माने में, उन सब मर्दों ने मारा गुजरे हुए ज़माने में, नो। बस उन्होंने हमें सिर्फ कि भई ये माज़ी की बात हो रही है, माज़ी में गुजरे हुए ज़माने का आपने ज़हन में अपना कॉन्सेप्ट रखना है। अब ये ज़रबा उस एक मर्द ने मारा, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। हमें कैसे पता चला ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है? इसलिए कि एक की बात हो रही है, वाहिद यहाँ से हम पता लगेगा, तो इसलिए वाहिद मुज़क्कर गायब का इस्तेमाल किया है। गायब, उस एक मर्द ने मारा। इस तरह ज़ोराबा, पहले ज़ोराबा था, अब ज़ोराबा आ गया, और बा के साथ देखें अलिफ लग गया, अलिफ उसके साथ मिला हुआ है, तो ये बन जाए फिर। और इसके ट्रांसलेशन में देखिए उन 2 मर्दों ने मारा, उन 2 मर्दों ने मारा, और आगे है सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। ये देखें ये 2 के लिए जब इस्तेमाल हुआ है तो बा के साथ एक अलिफ को हमने इंक्लूड कर दिया, तो ये तस्निया का सीगा बन जाएगा। उन 2 मर्दों ने मारा, और सीगा का फिर सीगा वाहिद नहीं रहेगा, सीगा तस्निया में शामिल हो जाएगा। आप पढ़ के पीछे आई हैं, एक को वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं, और जमा को जमा ही कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और तीसरा सीगा में आप आ जाएँ, आप उसमें भी देखें ज़रबू, ज़रबा में बा पे ख़त्म थी बात, वाहिद में जब तस्निया है तो बा के साथ अलिफ शामिल हो गया, तो तस्निया बन गया। अब जब हम जमा के सीगे पर आएँगे तो बा के साथ वाव इंक्लूड हुई है, तो ये ज़रबू ये जमा का सीगा बन गया अब ये।
उन सब मर्दों ने मारा। आप इसकी ट्रांसलेशन देखें, इसमें ना ये कहा जा रहा है कि उस एक मर्द ने मारा, या ये भी नहीं कहा जा रहा उन 2 मर्दों ने मारा, बल्कि कहा जा रहा उन सब मर्दों ने मारा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा उन सब मर्दों ने मारा है? क्योंकि यहाँ पे बा के साथ वाव जमा की डाल दी गई है। तो ये सीगा बन जाएगा सीगा जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है? ये 3 सीगे, ये सब किसके थे? मुज़क्कर के सीगे थे। याद रखिएगा, गायब के उन्होंने हमें 6 सीगे बताए हैं। गायब में हमने अब 3 सीगे मैंने आपके सामने पढ़े हैं। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। इसको पढ़ने का तरीका भी ये है, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। ज़रबा, ज़रबा में थोड़ा फ़र्क करना है, दोनों को एक जैसा नहीं पढ़ना, वरना ज़रबा और ज़रबा एक जैसे ही लगेंगे। ज़रबा, ज़रबा इसको थोड़ा-सा ना लंबा करना है, ताकि पता लगे आप तस्निया की बात कर रही हैं, और ज़रबा तो फिर टोटल चेंज हो जाएगा, वो तो समझ आ ही जाएगा। अब ये थे तीनों मुज़क्कर के सीगे। अब हम आएँगे मुअन्नस के। उन्होंने हमें बताया था कि 3 मुज़क्कर गायब के सीगे होंगे, और इसी तरह 3 मुअन्नस गायब के सीगे आएँगे। अब हम मुअन्नस की तरफ चलते हैं। पहला सीगा है द्वराबत। द्वराबत, ता बा के साथ ता इंक्लूड हुई और ता पर सुकून आया। उस एक औरत ने मारा। सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। उसके बाद है द्वराबता। देखें ता के बाद फिर एक अलिफ इंक्लूड हो गया अब यहाँ पे। ये फिर हमें किस चीज़ का पता दे रहा है? जिस तरह ऊपर एक अलिफ इंक्लूड होता है ज़रबा में, इस तरह यहाँ पे भी एक अलिफ यहाँ पे भी इंक्लूड हुआ है। तो ये हमें देखिए, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सीगा जो है, ये तस्नीया का सीगा है, लेकिन मुअन्नस का। ये भी बात याद रखिएगा, ज़रबा और ज़रबता, देखिए फ़र्क है। ठीक है? तो ज़रबता जब हो जाएगा तो ये उन 2 औरतों ने मारा है। इसके साथ अलिफ मिल गया तो हमारे ज़हन में फटाफट आ जाए कि ये बात तस्निया की हो रही है, यानी कि 2 औरतों की बात हो रही है। तो ये जब सीगा बन जाएगा सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो सीगा आता है मुअन्नस गायब का, वो होता है ज़रबना। ज़रबना, इसमें नून आ जाएगा आखिर में, ठीक है? उन सब औरतों ने मारा। अब ये जमा की बात हो जाएगी, उन सब औरतों ने मारा, और ये सीगा बन जाएगा सीगा जमा मुअन्नस गायब। सीगा जमा मुअन्नस गायब। इस तरह हमारे पास माजी मारूफ गायब के 6 सीगे कंप्लीट हो गए। मैं पढ़ देती हूँ एक दफा दोबारा, कैसे पढ़ना है आपने, कैसे याद करना। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ठीक है? इसको ना खींचना नहीं है, तो आप लोग अगर तजवीज़ वगैरह पढ़ी भी होगी तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप लोगों ने किसको कितना खींचना है। ये तो 6 सीगे थे। 3 उन्होंने शुरू में हमें मुज़क्कर गायब के बताए, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, और फिर इस तरह 3 मुअन्नस के हमें बताए, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। यहाँ पे हमारे माजी मारूफ गायब के 6 सीगे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आए हम लोग सवालात की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपके याद करने वाला ही है। आपने नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह आपने ये गर्दान जो है ना 6 सीगों की याद करके आनी है, और कोशिश करके आपने ग्रुप में भी इसको सुना देना, इससे ज़्यादा अच्छी फिर आपके उसमें रवानी आती है। और एक सांस में, कोशिश ये भी करनी है एक सांस में, क्योंकि एक तो एक तसलसल एक रब्त कायम रहता है, और एक जो उसकी वो जो क्या कहना चाहिए, एक उसका जो एक सीक्वेंस भी बाकी रहता है। अब आप इसको अगर ऐसे पढ़ें, देखिए ये कितनी बेकायदगी लगेगी। कुछ लोग इस तरह याद करते हैं, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रब, ये बिल्कुल भी लहज़ा ना रखिएगा। बिल्कुल इसको आपने जैसे मैंने बताया है, कोशिश करके इसको आपने वैसे ही पढ़ना है, और एक सांस में ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, बस। ठीक है? कोशिश करनी है, अटकना भी नहीं है। इसका गर्दान याद करने का, पढ़ने का मज़ा ही यही है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल तो आपको याद करने वाला है, और आपने इसको बगैर मायने के अगर आपने पढ़ा तो बगैर मायने के पढ़ना है ये, और माने के साथ भी याद करना है तो वो माने के साथ भी याद करना है, लेकिन ये माने आपके ज़हन में रहने चाहिए। गर्दान जब आप मुझे सुनाएँगी तो आपने तर्जुमा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं मुझे सुनानी। ये आपके उन्होंने समझने के लिए उन्होंने एक-एक चीज़ को उन्होंने यहाँ पे वाज़ेह किया है, लेकिन आप मुझे खाली गर्दान सुनाएँगी। उसके बाद सवाल नंबर 2 पे आप लोगों ने ज़ोराबना क्या सीखा है? ये आपने एक्सरसाइज़ देखनी है, हल करनी है इंशाल्लाह। तो आपने अब गर्दान में मैंने आपको बता दिया, अब आपने देखना है, ढूँढना है, और आपने ज़ोराबना बताना है क्या सीगा है, और माँ माना बताओ। माँ मतलब साथ होता है, ठीक है? माना भी साथ बताओ। तो यहाँ पे आपने इसके माना भी बताने हैं, ज़ोराबना सीगा है, और इसके मायने भी आपने बताने हैं। अभी हम गर्दान में इसको पढ़ कर आए हैं। अच्छा, नंबर 3
اس ایک عورت نے مارا اس کی بناؤ. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ضربہ مطلب مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ایک عورت کا کہاں, میں صرف آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دیتی ہوں ورنہ اس طرح تو پھر پوری ایکسرسائز ہی حل ہو جائے گی. کہ میں نے آپ کو جہاں بتایا تھا نا کہ ایک عورت کا ذکر آئے گا, تو ایک عورت کے لیے ہم نے کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے, آپ نے اب یہاں سے اٹھا کے بس وہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں گردان میں دیکھنا ہے اور لکھ دینا ہے. آپ نے کوئی اور فیل نہیں لگانا, فیل یہی رہے گا ذرا بھائی, اس کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے زورابو کیا صیغہ ہے. یہ بھی آپ گردان جب آپ یاد کریں گے تو آپ دیکھیے گا زورابو کیا صیغہ ہے. اسی طرح نمبر 5 پہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا کون صیغہ ہے, یہ بھی آپ کو گردان سے ہی پتہ لگے گا. اور نمبر 6 فعل ماضی میں کون سا ضمیر پایا جاتا ہے, یہ میں پیچھے بتا چکی ہوں, آپ اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا, دیکھیے گا. اور سوال نمبر 7 ہے ان 2 مردوں نے مارا اس کی عربی بناؤ. تو میں نے مارنے کی تو آپ کو میں نے بتا دی ہے, وہ ضربہ ہوتی ہے, لیکن اب آپ نے ان 2 مردوں کے کون سا صیغہ استعمال ہوگا وہ آپ گردان سے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں, اب آپ اس کو اچھے سے دیکھیے گا. اب اس کے بعد ہے انہوں نے ہمیں تھوڑی پریکٹس کے لیے انہوں نے سوال نمبر 8 میں نصرہ سمیہ کے 6 صیغے پڑھو. یہ انہوں نے ہمیں ایک لفظ دیا ہے, جس طرح فارمس آف وربس ہوتی ہے نا گو اینڈ گون, تو اسی طرح ان کے بھی یہ فعل بنیں گے, لیکن یہ ان کے بھی شکلیں نہیں ہیں, یہ ہمیں یہ ایک الفاظ دیے ہیں انہوں نے کہ اس سے آپ یہ گردان بنیں ہماری ویکیبلری میں اضافے کے لیے. اب یہ نصرہ میں کر کے دکھا دیتی ہوں, سمیہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, نصرہ مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. اب ہم نے سیم اس کو اس ضرب والے پیٹرن پہ بنانا ہے. اب آپ ہم اس کو کیسے بنائیں گے, نصرہ پہلے صیغہ کی طرح, پھر با کو جس طرح تھوڑا سا کھینچا تو نصرہ کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے الف اس میں ہم لگیں گے نصرہ. ضربو جیسے ہم نے پڑھا تھا تو اسی طرح کر دیں گے نصرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ضربت تو اسی طرح ہم پڑھیں گے نصرت. ٹھیک ہے, اس کے بعد ضربتا نصرتا, اس کے بعد ضربنا نصرنا. دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئے 6 صیغے آپ کے. نصرہ مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. اب ہم اس کو گردان میں پوری ایک دفعہ پھر دوبارہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں نصرہ کی. نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. ٹھیک ہے, یہ 6 یہ میں نے کون سا پیٹرن یوز کیا ہے, پیٹرن انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا کے سارے جو آپ کی گردانیں ہوں گی نا فعل ماضی کی, وہ ساری اسی پیٹرن پر چلیں گی. 6 غائب کے ابھی ہم نے پڑھے ہیں, تو 6 غائب پر آپ نے نصرہ کا یہ میں نے آپ کو اس کی پیٹرن پر کر کے بتایا ہے. اب آگے ہے لفظ سمیہ. سمیہ مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. نصرہ کا مطلب اس کو ایک مرد نے مدد کی یا مدد کرنا, سمیہ اسے ایک مرد نے سنا یا سننا. تو یہ سمیہ سے اب آپ نے خود بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ کیسے گردان بنے گی, اور یہ آپ نے پھر گروپ میں سنانی ہے. تو یہ آپ کے صرف 8 کوشچن ہیں, اور باقی جو نیچے ہیں, نیچے انہوں نے آپ لوگوں کو یہ کچھ الفاظ بتائے ہیں, اور یہ آپ نے اچھے سے ان کو دیکھنا ہے. اور کچھ کیا بلکہ سارے تقریباً نئے ہی الفاظ ہیں. جا ہے وہ آیا, شریبہ اس نے پیا, ذہبہ وہ گیا, نصر اس نے مدد کی, قرا اس نے پڑھا, اکلا اس نے کھایا, شریبت اسے ایک عورت نے پیا, فتح ان سب مردوں نے کھولا, سمع ان سب مردوں نے سنا, شریبتا ان 2 عورتوں نے پیا, خرجہ وہ نکلا, کتبہ اس نے لکھا, سمع اس نے سنا, فتح اس نے کھولا, دخل وہ داخل ہوا, نصرتا ان 2 عورتوں نے مدد کی, خرجہ وہ 2 مرد نکلے, اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا, اقرأنا ان سب عورتوں نے پڑھا. یہ آپ کو یہ دیکھیں, یہ ساری آپ کی ویکیبلری میں اضافے کے لیے دیکھیں کتنے نئے الفاظ آئے, تو آپ اس کو اچھے سے دیکھیے گا اور یاد کیجیے گا ان کو. مثلا ابھی ہم نے صرف 2 یا 3 الفاظ پڑھے تھے, لیکن یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے نئے الفاظ ہیں. ہم نے ابھی تک صرف ضربہ پڑھا تھا, اور نصرہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, اور سمیہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, مارنا. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. سمیہ کا مطلب سننا یا اس نے سنا. اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں نئے الفاظ کون سے آئے. دیکھیں جا, آج ہمیں پتہ لگا اس کا مطلب ہوتا ہے آنا, آیا, جا. شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پیا, پینا. ذہبہ گیا. دیکھیں نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. قرأ پڑھنا یا پڑھا. اکلا مطلب ہوتا ہے کھایا, کھانا. شریبت وہی شریبہ سے ہے, پینا, جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. فتح فتح مطلب ہوتا ہے, فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک ہے, اور سمیع جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا, اس کا مطلب ہوتا ہے سننا, تو ان سب مردوں نے سنا. اور اس کے بعد ہے خرجہ. خرجہ مطلب نکلا یا نکلنا. ٹھیک ہے,
कतबा लिखा, उसने लिखा, कतमा मतलब लिखना, और समिया फिर वही आ गया, उसने सुना, मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। फतहा भी आया, उसने खोला। दखला मतलब होता है दाखिल होना। नसरता जो ये भी मैंने ऊपर बता दिया। खरज वही है, वो 2 मर्द निकले। हाँ, सिर्फ़ इनकी अब आपने ये भी नोट करना है कि इनके सीगों में चेंजिंग क्या-क्या आई है। मसलन जा है, शरीबा है, ज़हबा है। आपने ये आगे देखना है कि इनके सीगों में यानी कि क्या-क्या है चेंजिंग। मसलन ये देखें, शरीबा उसने पिया, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा आया, वाहिद सॉरी मुज़क्कर गायब का सीगा आया। इसी तरह जा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आया। आपने थोड़ा-सा ध्यान करना है सीगों पे। साथ-साथ नए अल्फाज़ को भी याद करना है इनके तर्जुमे पे, और साथ-साथ ये भी करना है कि इनमें कौन-कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है। हमने जो 6 सीगे पढ़े, वो कौन-कौन से यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। अब ज़हबा देखें, वो गया, तो ये सबसे पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब। जैसे कि ज़रबा है, इसी तरह ज़हबा है, ठीक है? वो एक मर्द गया या वो गया। नसौरा है, ये भी देखें, ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ये आपने खूब गौर करनी है, तो आपको अच्छे से आएगा। इसके बाद है क़रा, क़रा देखें, ये पहला ये भी सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। इसी तरह अकला, खाना खाया, ये भी उसने पहला ही सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। शरीबत जो देखें, ये इसमें क्या चेंज आ गई देखें, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा बन गया। ता पर सुकून आया आखिर में। और फ़तहू, फ़तहू को आपने देखें, ये किसके उस पर आया है, किस सीगे पर आया है, किस वज़न पर आया है, ये कि ज़रबू, फ़तहू ज़रबू, ये जमा की बात हो गई, उन सब मर्दों ने खोला। इसी तरह समिअू, ज़रबू, ये देखिए हमने पढ़ा था ना, तो समिअू, ये भी देखिए आइन वाव पे वाव आखिर में आ गया ना, तो वाव जमा की आ गई है। तो आपने इन सीगों को गौर से देखना है, फिर मैं आपसे अगली दफ़ा मैं नेक्स्ट टाइम में पूछूँगी कि इंशाअल्लाह ये आप बताएँ, ये किस-किस वज़न पे आए हैं, किस-किस सीगे के इस्तेमाल हुए हैं। मसलन मैं पूछ लूँगी दखला बताएँ, ये कौन-सा सीगा है? तो ये फिर आप लोगों ने अच्छे से इसकी तैयारी करके आनी है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, जी, मैम मैंने ये जी, पूछना हमने सबक इसी ग्रुप में सुनाना है? अ, जी, आपको ये एडमिन हिरा जी है ना, ये आपको बता देंगी इंशाल्लाह। ठीक है? वो आपको बता देंगी ग्रुप में किस तरह आपने सबक और कैसे आपने सुनाना है, क्या करना है। जी, मेरा सवाल ये था जी, कि जज़ाकल्लाह। ये जो अरबी हम सीखेंगे, जो भी हम इसमें सीखेंगे ग्रामर का, कि कुरानिक ग्रामर के हिसाब से मतलब ज़ॉद और दौद का फ़र्क है ना, तो वो मुझे थोड़ा सुनने में भी थोड़ा-सा वो लग रहा है थोड़ा-सा। यानी इसको ज़ॉद पढ़ेंगे या दौद पढ़ेंगे? जैसे देखिए, मैं आपको बताऊँ, ज़्वाद जो होते हैं ना, 2 तरीके से दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। बाद लोग द्वाद पढ़ते हैं, बाद लोग ज़्वाद पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जिस तरह के नहीं, ये अ ग्रामर मतलब कुरानिक ग्रामर होगी, कि जो बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं, या नॉर्मली जो ग्रामर होती है? देखिए, ये ताल्लुक इसका कुरान और सुन्नत से ही है ना, कहाँ से आया ये इल्म? ये कुरान और सुन्नत से आया, तो ज़ाहिर है, जब जो ज़वाद, स्वाद जो हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, आप कोशिश करके इसको भी ऐसे ही पढ़ें। लोग वैसे पढ़ने वाले तो इस तरह भी पढ़ लेते हैं सीधा-सीधा, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबा, ज़रबत, ज़रबना, ज़रबता, लेकिन अगर आप उसको ज़रा अच्छे लहजे से पढ़ेंगी और अच्छे उसमें, तो कहते हैं ना, एक उसमें एक निखार आ जाता है। पढ़ने को तो इस जी, तरह और भी पढ़ एक और सकते हैं। जी, एक और सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि दम्मा, फ़तह और कसरा, एक्चुअली मैंने पहले जो सुना हुआ है उसको रफ़ा, नस्ब और जर, ये मतलब पुरानी कुछ टर्मिनोलॉजी थी, हाँ, तो ये इसका भी भी कुछ हाँ, बता दें? हाँ, ये भी होती है। ये कहते हैं ना, जैसे एक नाइब, जैसे इसकी ये नाइब है, ये इसकी। तो ये भी इस्तेमाल होती हैं। ये इंशाल्लाह जब आप लोग इंशाल्लाह आगे जाएँगे ना, तो आप उस लेवल पे जाके फिर सीखेंगे, तो ये भी इसकी नाइब भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं ही एक और सवाल करना चाह रही थी। चलो आप करो। थोड़ा-सा, हाँ जी, थोड़ा-सा अगर स्पीड आप नहीं, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। लिखवाने के अलावा मतलब एक दिन में इतना काम, मुझे नहीं पता कि अब पूरे ग्रुप में कितने मतलब माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन मेरे अपने लिए ये मुश्किल है, एक दिन में इतना सब बवाल अपने अंदर डालना। नहीं, नहीं, देखिए, बात सुनें, ये जो आप ये भी देखिए ना कि हमारी तो ये रेगुलर क्लास तो है ही नहीं, वीकली क्लास है हमारी, तो ये सैटरडे को हुआ करेगी। उसके बाद देखिए आपके पास कितना टाइम पीरियड है, आप इसको माशाल्लाह अच्छे से याद कर सकते हैं। आप यकीन करें, अगर हॉनेस्टली आप 1 घंटा भी इसको दे देना अपने टाइम रूटीन से 24 आवर्स में से, आप यकीन करें, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको सबक को अज़बर याद कर लेंगी। मैं ज़्यादा नहीं दें, आप 1 घंटा दे दें। चलें, आप 1 घंटा भी नहीं दे सकती, आधा घंटा दे दें, लेकिन एक यकसुई के साथ दे दें।
میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ اسے نہ یاد کر سکیں، لیکن اس میں یکسوئی دیکھیے سب سے پہلے ہماری نیت کاؤنٹ کرتی ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے میرا شروع کا لیکچر سنا ہو تو میں نے اسی چیز پہ میں نے یہ فوکس، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں اسی لیے بتائی تھی کہ ایک طالب علم کو ان چیزوں پر کیسے کیسے توجہ کرنا ہے، کب کب اس نے کیسے کیسے مطالعہ کرنا ہے، کیسے کیسے ان چیزوں کو اپنے نوٹس میں لے کے آنا ہے، کب اس نے یاد کرنا ہے، یہ میں ساری چیزیں وہاں پہ میں نے انشاءاللہ بتائی تھی اپنے اس لیکچر میں۔ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد مانگیں اور اس کی توفیق سے آپ انشاءاللہ یاد کرنے جب بیٹھیں گی تو آدھا گھنٹہ آپ نکال لیں، تو آدھے گھنٹے میں دیکھیں آپ روزانہ کو دیکھیں نا، آپ اگر آدھا گھنٹہ نکالیں، آپ اپنا ایک مائنڈ بنائیں کہ آج میں نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آج میں نے صرف آدھا پیج یاد کرنا ہے، حرکت سے لے کے میں نے صرف وہیں تک یاد کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں یاد کرنا۔ دوسرے دن آدھا گھنٹہ آپ نکالیں، اس کو ریوائز کریں، پھر اگلا پڑھیں۔ میں انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے آپ بہت اچھا یاد کر لیں گی۔ تو اسی طرح آپ ان کو آپ اسی طرح آپ ان کوشش تو پوری ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ بہتری کے معاملات کرے اس کے لیے۔ ہاں جی انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اس کی توفیق مانگیں تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میم ایکچولی آج آپ نے جو لیسن مطلب کہ وہ کروایا الحمدللہ کافی حد تک سمجھ آئی ہے، لیکن اگر کچھ مشکل ہو مطلب کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو ان ڈیز میں تو ہم کیسے آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے پرسنل میں میرے سے بات کر سکتے ہیں، یا پھر آپ گروپ میں آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، میں گروپ میں وائس میسج کر کے آپ کو بتا دیا کروں گی۔ آپ کو نا ہیرا جی بتا دیں گی وہ سارا، آپ کو آپ کے جو آپ کے سوالات وغیرہ ہیں آپ وہ سارے وہاں پہ آپ کو گروپ میں وہ جواب لکھ کے دے دیں گی کہ آپ نے کس طرح پوچھنا ہے، آپ نے کیسے پوچھنا ہے۔ جی میم ٹھیک ہے، اگر السلام علیکم۔ چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی اس کلاس کی ریکارڈنگ مل جائے گی؟ جی جی اس کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ہیرا جی جو ہیں وہ آپ لوگوں میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ 1-2 دن تک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے تھوڑا لیٹ جوائن کرا، وہ اصل میں میٹ کو پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا، تو سٹارٹ میں آپ نے ایک لفظ جب میں نے کری تو ایک لفظ آپ نے صرف کا بولا، صرف اور نحو، تو اس کے متعلق بھی کچھ بتایا تھا آپ نے، اگر کوئی اس کی تعریف کی ہے تو؟ جی جی سسٹر، میں نے صرف اور نحو کی آپ کو ڈیفینیشنز بتائی تھیں۔ دیکھیں کسی علم کو سیکھنے کے لیے اس کے مبادیات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی اس کا تعریف، موضوع، اہمیت، غرض و غایت، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا فائدہ، ثمرات وغیرہ کیا ہے، تو یہ میں وہی چیزیں صرف 3-4 لائنز میں نے یہ ہیڈنگ یہ بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ تک ریکارڈنگ پہنچ جائے گی تو آپ اس میں سن لیجیے گا، اس میں نے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو اچھے سے کیجیے گا۔ اگر نہ کچھ سمجھ آئے تو آپ پرسنل میں بھی کوشچن کر سکتی ہیں۔ اور کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کلاس کو پھر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔